السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ مری میں شدید برفباری اور بارشوں کے سبب دریا گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ متعدد گھر لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے کا خدشہ ہے۔ مری میں دریا گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ بھاری چٹانیں شاہراہ پر گر گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مری ایبٹ آباد روڈ بند ہو گئی ہے۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے مشین کے ذریعے روڈ کی صفائی کی گئی۔ متعدد گھر بھی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور گھروں کو خالی کروا لیا گیا۔ مکینوں کو سخت سردی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ چند ماہ قبل تعمیرات کے سلسلے میں مشین کے ذریعے کٹائی کی گئی تھی۔ جہلم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پورا دن گیس کے چولہے ٹھنڈے رہتے ہیں۔ شہری گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ بابر حسین کی رپورٹ۔ جہلم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کئی دنوں سے ہو رہی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ گیس کی یہ پوزیشن ہے کہ گھر کے لوڈ شیڈنگ اس قدر گیس کی ہے کہ صبح بغیر ناشتے کے کہیں دفعہ جانا پڑتا ہے، تو ایل پی جی بھی اس قدر مہنگی ہے کہ وہ بھی افورڈ سے باہر ہے۔ دوسرا چیزیں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے جینا۔ دوسری طرف ایل پی جی اور لکڑی کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ شہ خورد و نوش تو آگے ہی مہنگی ہیں۔ سوئی گیس کے متبادل شہری مہنگی لکڑی اور مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین اسنان علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جہلم۔ کوٹدو میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین مہنگی ترین ایل پی جی اور لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ اسحاق کاظمی کی رپورٹ۔ کوٹ ادو سوئی گیس کی بندش شدت اختیار کر گئی۔ سوئی گیس بند رہنے پر گھریلو صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وارڈ نمبر 9 اور 10 میں سوئی گیس صبح سے رات تک بند رہنے لگی۔ گھر میں کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے ہمارے علاقوں میں سوئی گیس بند کر دی جاتی ہے، شکایت کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوتا۔ گیس کم ہے، پہلے بھی کم تھا، اب بھی کم ہے۔ ایک دن گیس آئی ہے، دوسرے دن پھر وہ پریشر کم ہو گیا ہے۔ کھانا بازار سے لینا پڑتا ہے یا لکڑیاں لے کر مہنگا کھانا بنانا پڑتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا گیس پریشر پورا کھولا جائے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فی الفور نوٹس لے کر گیس کی بندش اور کم پریشر کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو۔ مظفر گڑھ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری عاجز آ گئے۔ امور خانہ نمٹانے میں خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری گھر کا کھانا کھانے کو ترس گئے۔ سمیع اللہ کی رپورٹ۔ مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں ٹپا، کریم آباد، بلال نگر، کیمپ والا، ریلوے اسٹیشن قیوم نگر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو خواتین ہوٹل سے کھانا منگوانے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جب ہم گیس کے بل بھی ادا کرتے ہیں پھر گیس کیوں پوری نہیں ہوتی۔ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کھانا تو ٹائم پر مل سکے۔ کچھ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پورے شہر میں گیس نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارے بچے بھی جو ہے نا بنا ناشتے کے اسکول جاتے ہیں اور شام کو ہم گھر جاتے ہیں، ہمیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی۔ میں حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی بندش کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ غریب آدمی کا 2 وقت کا کھانا تو پک سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ سوئی گیس کی بندش کے خلاف ڈڈیال میں خواتین سراپا احتجاج بن گئی۔ محکمہ سوئی گیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آصف علی کی رپورٹ۔ ڈڈیال میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین میدان میں اتر آئیں اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خواتین نے محکمہ سوئی گیس کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے گیس دو یا کھانا دو جیسے نعرے لگائے۔ خواتین کے احتجاج کے بعد ایریا سپروائزر ٹیم کے ہمراہ ڈڈیال پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ڈڈیال کا لو پریشر کا مسئلہ ہے، مثلا ٹیکنیکل مسئلہ بنتا ہے، کسی جگہ پہ ملٹی ڈرل کرانی ہے، گلی پوری محلے کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ خواتین کے احتجاج کے موقع پر سابق وائس چیئرمین ضلع کونسل چکوال چودھری خورشید بیگ بھی پہنچ گئے اور احتجاج میں شامل خواتین کو محکمہ سوئی گیس اور انتظامیہ کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرہ مین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی، سچ نیوز، ڈڈیال۔ کالے کی منڈی میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ عمران خورشید کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کالے کی منڈی میں بھی گیس پریشر کم ہونے کے باعث شہری شدید پریشان نظر آ رہے ہیں۔ صبح کے اوقات گھروں میں گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے اسکول جانے والے بچوں سمیت سرکاری ملازمین کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ گیس دی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، نہ ہونے دے برابر گیس
ਸੁਬਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬੰਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਗੈਸ ਬੰਦ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਆਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ और गैस जड़ा है बर वक्त टाइम पे भेजी जाए। गैस की शदीद लोड शेडिंग की वजह से आम आदमी जहां सख्त परेशानी में मुब्तला है, वहीं मतवातर गैस का बिल आना उस परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा है। कैमरामैन गोगा भट्ट के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। औसत मोहम्मद में शहर के वस्त से गुजरने वाली साफ पानी की नहर को शहरियों ने सीवरेज नाला बना दिया। पीने का पानी आलूदा हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। चाकर खान की रिपोर्ट। उस्ता मोहम्मद में शहर के वस्त से गुजरने वाली साफ पानी की नहर गंदे पानी का नाला बन गई। ये नहर 6 दहाइयों तक शहरियों के लिए साफ पानी पीने के साथ साथ हजारों एकड़ रकबे को भी सैराब किया करती थी, लेकिन 2 दहाइयों से निस शहर का सीवरेज इसी खानपुर नहर में डाला जा रहा है, जबकि ज़िबाशुदा जानवरों की आलाइशों समेत शहर की गंदगी भी इसी नहर में डालकर इसे मजीद आलूदा बना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अब भी इसी नहर से दर्जनों देहातों के मकीन पीने का पानी हासिल करते हैं। आलूदा पानी पीने के बाद सैकड़ों अफराद जिगर के सरतान, हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि कुछ अरसे पहले इस नहर से जो है ना तमाम शहरी और देहाती पानी पिया करते थे, अभी भी पी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस नहर को इतना गंदा बनाया गया कि मैं समझता हूँ अभी हमारे ये जानवरों के लिए भी मुज़र सेहत बन गया है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि इस नहर को जो है ना गंदा बनाने से बचाया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। ताहम उस्ताउन के शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि खानपुर नहर को आलूदगी से बचाकर लोगों की जिंदगी महफूज बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़। धुंध और तेज रफ्तारी ट्रैफिक हादसात का सबब बन गई। मुख्तलिफ हादसात में 2 मुसाफिर जान से गए जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। तलागंग में धुंध के सबब मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। मैकलोडगंज में हाईवे रोड पर मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खैरपुर नाथन शाह के शहर मेहड़ में बाईपास के मकाम पर तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेनाला खुर्द की कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस उलट गई। 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। रहरकी में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर ट्रक से टकराने के बाद उलट गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए जबकि ऑयल टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर फर्नेस ऑयल मौजूद था। मुख्तलिफ शहरों में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स कत्ल जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हाफिजाबाद में मुलजमान ने तशद्दुद करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। हाफिजाबाद का रिहायशी घर जा रहा था कि घात लगाए कातिलों ने हमला कर दिया। मकतूल को तेज धाराले और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दायत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लिया की आबादी 15 लाख से तजावुज कर चुकी, लेकिन एक ही बड़े अस्पताल को सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डॉक्टर्स की कमी का सामना है। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया में जिला भर के मरीजों के लिए एक ही बड़ा अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, जिसे 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समेत 3 तहसील लेवल अस्पतालों से रेफर होने वाले मरीजों का भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को इस वक्त डॉक्टर्स की शदीद कमी का सामना है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नेफ्रोलॉजिस्ट की 1, ENT की 2, न्यूरो सर्जन की 1, एनेस्थीसिया की 4, रेडियोलॉजिस्ट की 1 और सर्जन की 2 असामियां खाली पड़ी हैं। पेशेंट जो है आए रोज आते हैं और वापस ही चले जाते हैं। डॉक्टर और स्टाफ की कमी है कि हमारे यहाँ पे बेड्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन डॉक्टर उस हिसाब से नहीं है। डॉक्टरों की बहुत कमी है। पेशेंट इस वजह से काफ़ी वेट में रहते हैं, बहुत क्राउडी रहता है। इंतज़ामिया का काम है कि जिस तरह से अब डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो उन्हें रिक्रूट करें, यहाँ पे रखें, क्योंकि पेशेंट बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसके लिए होना चाहिए यहाँ पे डॉक्टर्स का मुकम्मल। डॉक्टर्स की खाली असामियों के सबब दूर दराज से आए मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। चौक सरवर शहीद में सफाई का निज़ाम दरहम भरम हो गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद का गुंजान आबाद रहायशी इलाका मजर मार्केट कचरा कुंडी के मनाजर पेश करने लगा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। गंदगी के ढेरों की वजह से रहायशी इलाकों में बदबू और ताफुन से इलाका मक्कीनों का जीना दोबर हो चुका है। बदबू और ताफुन से इलाका मक्कीन मुख्तलिफ इमराज का शिकार भी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गंद है, नाल कब्रिस्तान है, नाल महल्ले ने साडे
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। 50 ਦਫਾ ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਖ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਗੰਦ ਲਿਆਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ सामने साढ़े घर ने 80,000 दे चढ़े हैं, मेहरबानी करने तो साड़ी जान छुड़वा दें। घरों के सामने गंदगी के ढेर इलाका मकीनों को मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरियों ने मुतद्दद बार जिले और तहसील इंतजामिया को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़ चौक सरवर शहीद। इंतजामिया ने गफलत की इंतहा कर दी। मंडी बहाउद्दीन में सीवरेज के नाकस इंतजामात के सबब सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में सीवरेज के नाकस इंतजामात ने वासू रोड और मुल्हिका आबादियों के मकीनों को अजियतनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया। वासू रोड DH के अस्पताल समेत मुतअद्दिद नवाई इलाकों और देहातों से मिलाने वाली मसरूफ तरीन गुजरगाह है, जिस पर कई माह से सीवरेज का पानी खड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है, यहाँ पे मेरी दुकान है, 1 साल हो गया मुझे तकरीबन यहाँ पे देखते हुए। हम खुद इधर कई लेके बेलचे लेके गंद निकालते हैं नालों में से। कोई TMO का अफसर आता है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। तलबा और तालिबात गंदे पानी से गुजर कर तालीमी इदारों में जाने पर मजबूर हैं। मसला के हल के लिए मुतअद्दिद बार इंतजामिया की तवज्जो दिलाई गई मगर इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि सिटीजन पोर्टल पर दी गई दरख्वास्त को भी मकामी अफसर शाही की जानिब से नजरअंदाज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मसला के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दामात अमल में लाए जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। लालसवारा के इलाके में सीवरेज का मसला हल न हो सका। देखिए राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट। लालसवारा के नवाई इलाका टिब्बा संगवा में सीवरेज का दरीना मसला हल ना हो सका। इलाका मकीन सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। सीवरेज का पानी जमा ताफुन के बाइस शहरियों के लिए जिंदगी गुजारना मुहाल बन गया। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारा टिब्बा समा का ये सीवरेज का मसला बहुत पुराना है और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे नमाजियों को आने जाने में परेशानी होती है। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब व दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ़ लक, सच न्यूज़, लालसवारा। मियांवाली के शहर कुंदिया के मकीन दौरे जदीद में भी सीवरेज सोलिंग जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। अमीर अकबर कलियार की रिपोर्ट। महल्ला नक्शबंदी कुंदिया के रहायशी ज़िले व तहसील इंतजामिया और मुंतखब सियासी नुमाइंदों की लापरवाही पर सरापा एहतजाज हैं। अरसा दराज से महल्ला नक्शबंदी के मकीन सोलिंग, सीवरेज, इलेक्ट्रिक पोल्स की अदम तनसीब जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। इसी सिलसिला में अहला महल्ला ने गुज़श्ता दिन एक मशावती मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें सियासी नुमाइंदों की लापरवाही के खिलाफ आने वाले इलेक्शन में मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया गया। साडे महल्ले दे विच एक तो सीवरेज दा निज़ाम बिल्कुल इस दौर दे विच भी है कोना ते साडी अपील है जी को सारा ख्याल रखा वने ना कोई सारी सोलिंग बनी हुई है। सारी गलियां दे विच सारी बिजली वाले खंबे कोने लगे हुए। इस दौर में सीवरेज सारी मुकम्मल बंद पई है। एहलियान महल्ला नक्शबंदी का कहना है कि मुंतखब सियासी नुमाइंदे हमारे हाल पर रहम करें और शहर के वस्त में वाक़े महल्ला की हालत पर खसूसी तवज्जो दें। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के साथ ही शाहकोट में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। लियाकत अली भट्टी की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही शाहकोट में ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में इजाफा करके अपनी मर्जी के हिसाब से किराया वसूल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस बारे में जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था, तकरीबन हर माह में पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ा दी जाती हैं, इस तरह कीमतों को बढ़ाने से आम आवाम पर जो है वो ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो गरीब तबके का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इस तरह कीमतें बढ़ती जाएंगी तो लोग कारोबार जो वो बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान में मईशत जो है वो और ज़्यादा क्राइसिस में चली जाएगी। तो लीडरशिप जो है वो इसीलिए चुनी जाती है कि इन क्राइसिस से आम आवाम को निकाला जाए। शहरियों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पहले ही महंगाई ने आम आदमी का जीना अजीरन कर रखा है। ऐसे में किरायों में मजीद इजाफे ने इनकी मुश्किलात और बढ़ा दी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। सिनेमा में खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिनेमा में असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू आमिर महमूद ने एक बार फिर खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की मुद्दत में थाना सिनेमा में खाद स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ब्रोकर को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। 700 बोरी खाद से भरा ट्रेलर जो बलूचिस्तान भेजा जा रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि बरामद की गई खाद किसानों में तकसीम की जाए। खानबेला शहर और गिरदनवा के इलाकों में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खानबेला में यूरिया खाद न मिलने पर गंदम की फसल मुतासर होने लगी। दूसरी जानिब खाद माफिया ने यूरी मार्केट से गायब कर दी, जिसके बायस खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सब्जियों और फलों के निर्ख इस्तेहकाम में रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया खानेवाल ने सब्जियों और फलों के नर्ख में इस्तेहकाम रखने के लिए कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर सलमान लोधी ने नीलामी के अमल का जायजा लेने के लिए अलग सुबह सब्जी व फ्रूट मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में आलू, प्याज, टमाटर और अदरक की अपनी निगरानी में बोली कराई। मार्केट कमेटी हुकाम को बोली से कबल नर्ख का दीगर शहरों से तकाबली जायजा करने की हिदायत की। उन्होंने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को मंडी में सफाई भी बेहतर करने का हुक्म देते हुए कहा कि नर्ख इस्तेहकाम में रखने के लिए मौसर मैकेनिज्म पर काम की जरूरत है। मंडियों में कम नर्ख का फायदा आम मार्केट में सार्फिन को हर सूरत होना चाहिए। अपनी मार्केट कमेटी के साथ मंडी विज़िट किया हमने, लेकिन ये है कि प्रोसेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इंशाल्लाह इसकी मॉनिटरिंग मज़ीद बेहतर बनाएंगे ताकि महंगाई पे जिस हद तक हो सके काबू पाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि फर्जी बोली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार इस्माइल और मार्केट कमेटी अफसरान भी इनके हमरा थे। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। जिला नारोवाल में दीवार एहसास कायम कर दी गई। देखिए सैयद ज़कीर हुसैन की रिपोर्ट। गरीब नादार मुस्तहकीन को सर्द मौसम में इस प्रोग्राम की बदौलत गर्म कपड़े, जर्सियाँ, स्वेटर्स और दीगर मलबूसात मुफ्त मुहैया हो रहे हैं। दीवार एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन, बच्चों और बड़ों के सबके लिए मलबूसात यहाँ दस्तयाब है। वो लोग जिनके पास फालतू कपड़े पड़े हुए हैं गर्मियों के, सर्दियों के, वो इन्हें दे और इस दीवार पर लगाए, इस दीवार के पास। और वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो यहाँ से आएँ और सफ़ेद पोशी से खामोशी के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से स्वेटर, जैकेट्स और शर्ट या कपड़े ले जाएं। पंजाब ने शुरू किया है, ये बहुत आसन कदम है वज़ीर आला पंजाब का, और महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नारोवाल का भी मैं समझता हूँ इसमें बहुत हिस्सा है। दीवार एहसास के हवाले से मुखैर हजरात चौधरी मोहम्मद सज्जाद महेश ने भी कहा है कि उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों के काम आ सके। दीवार एहसास प्रोग्राम भी इसी तसलसल की एक कड़ी है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद ज़कीर हुसैन शाह, सच न्यूज़, नारोवाल। जिला डेरा गाजी खान में पंजाब बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनें और चेक तकसीम किए गए। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। डेराजी खान वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वज़ीर ने ज़िला कौंसल हाल डेराजी खान में पंजाब बैतुल माल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने गरीब अवाम को तरजीह दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब अवाम की इमदाद की जा रही है। बुजुर्ग अफराद को महाना इमदाद एहसास दीवार एहसास बाजार के बाद एहसास दस्तरखान का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। 1.5 साल में बैतुल माल का बहाल किया। मैं पूरे वसूल को जुर्रत से ये बात कह सकता हूँ कि माजी के 20 साल के मुकाबले में मेरे 1.5 साल भी उनसे ज्यादा है। कौमी शनाख्ती कार्ड को इंसाफ सेहत कार्ड का दर्जा दिया गया है। पंजाब बैतुल माल के जरिए मिलने वाली सिलाई मशीनें से खवातीन बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगी। इस मौके पर जिले चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद हुसैन नियाजी और दीगर ने भी खिताब किया। जब से हुसैन नियाजी बैतुल माल का यहाँ पे चेयरमैन बना है, मैंने पिछले 5 सालों में 10 सालों में जिंदगी में मैंने कभी बैतुल माल का नाम नहीं सुना था। हमने कभी कोई चेक नहीं देखा कि किसी नादार को, माजूर को, कमजोर फर्द को कोई चेक मिला हो। खवातीन में सिलाई मशीनें और मुस्तहकीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। रहीम यार खान ऑल क्लर्क्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। रहीम यार खान के निजी मैरिज हॉल में एपका की तकरीब हल्फबरदारी का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में शहर की सियासी समाजी शख्सियत और क्लर्क एसोसिएशन की मरकजी क़यादत समेत जिला के तमाम अफसरान और क्लर्क्स ने भरपूर तादाद में शिरकत की। जो मुलाजमीन का हम पर एतमाद है, आज ये आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की ये जो तकरीब हल्फबरदारी है जिस पैमाने पर हमने की है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि मुलाजिम हम पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। मुसलसल 5वीं बार सदर मुंतखब होने वाले सदर एपका मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। इनका कहना है कि किसी भी मुश्किल वक्त में मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए जिन्होंने मुझे वोट दे के 5वीं दफा सेलेक्ट किया है, उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों के लिए खाने का भरपूर इंतजाम किया और मेहमानों की जानब से मुंतखब सदर और मुकम्मल बॉडी को मुबारकबाद दी गई। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। 36 साल महकमे जंगलात में मुलाजमत करने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फॉरेस्टर्स के सदर मुशर्रफ गुल रिटायर्ड हो गए हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट।
36 साल महकमा जंगलात में मुलाजिमत करने वाली दीर फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर्स के सदर मुशर्रफ गुल रिटायर हो गई। इस सिलसिले में महकमा जंगलात दीर लोर की जानिब से एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। महकमा जंगलात के अफसरानों और अहलकारों और इलाके के सियासी और समाजी शख्सियतों ने शिरकत की। मकरूर ने खिताब करते हुए दीर फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टरों के सदर मुशर्रफ गुल के जंगलात के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो इक़दामात की थी और टिम्बर माफिया के जिस दलील के साथ मुकाबला किया, इस पर महकमा जंगलात और इलाके के अवाम ने मुशर्रफ गुल को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ गुल की खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी और महकमा जंगलात के तमाम अहलकारों को चाहिए कि वो मुशर्रफ गुल की तरह ईमानदारी और बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, उसकई, लोअर दिर। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में यौमिया मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। तनकीद की जद में रहने वाला मंसूबा बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस जो कि कामयाबी से जारी है। अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने वाले मंसूबे में मुसाफिरों की तादाद में योमिया इजाफा हो गया। तर्जुमान मास ट्रांजिट के मुताबिक 2.5 लाख से जायद अफराद रोजाना इस सर्विस से मुस्तफीद होते हैं। तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं, हम कारकर्दगी से देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2,54,000 से ज्यादा जो रिकॉर्ड है लोग जिसमें सफर कर रहे हैं, तो लोगों का जो सफरी दादोशुमार है ये खुद साख्ता कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब शहरियों ने भी इस सर्विस को पेशावर के लिए तोहफा करार दिया और कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले तुलबा और तालबात का वक्त अब जाया नहीं होता। पहले हम लोग जाते थे तो कभी बस चली जाती थी, कभी खड़े रहकर जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। अभी माशाल्लाह से BRT बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है। खासकर जो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के जो तलबा तालिबात हैं, ये उसके लिए बहुत सहूलत मैसर है क्योंकि ये सुजुकी वगैरह जो थी उसमें रश होती थी, मज़दा में कोई अलग इंतजाम नहीं था। मुसाफिरों की तादाद में बढ़ते हुए इजाफे के पेश नजर मास ट्रांजिट ने एक्सप्रेस रूट नंबर 1 और स्टॉपिंग रूट नंबर 8 के औकाते कार भी बढ़ा दिए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। चिन्योट में खवातीन चोर गैंग पुलिस और शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। खवातीन चोर गैंग चिन्योट में शहरियों और पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गया। गदागरों के भेस में मार्केट में आने वाली खवातीन दुकानों पर चोरी की वारदात करके गायब हो जाती हैं। सरफा बाजार और मोबाइल मार्केट में चोरी की वारदातों की फुटेज सामने आने के बाद भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कुदरती हुस्न से मालामाल परचनार में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। जावेद बंगश की रिपोर्ट। परचनार समेत जिला भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में मकामी व गैर मकामी सियाह परचनार का रुख कर रहे हैं। नौजवान सेल्फियां बनाकर और बर्फ में पकवानों की तैयारी में भी मसरूफ नजर आते हैं। इन खूबसूरत इलाकों में अगर हुकूमत सियाहों को सहूलियात फराहम करे तो ये मुल्क की सतह पर बेहतरीन तफरीही मकामात बन सकते हैं। जावेद बंगश, सच न्यूज, परचनार, जिले कुरुम। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस 44,717 तक जा पहुंचे। आलमी वायरस मजीद 8 जाने ले गया। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। आलमी मोहलिक वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 8 मरीज जान से गए। शरह 9.48% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में मजमुई अमवात 13,38,990 से बढ़ चुकी हैं। 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,65,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान 7,232 टेस्ट किए गए हैं। 2,902 नए अफराद मुतासिर रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 40.13% हो गई है। मुल्क भर में शहरियों की वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगाए जाने का सिलसिला भी जारी है। एहतियाती तदाबीर की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। फारूकाबाद में पुलिस की जानिब से फूलों की नुमाइश ने सबके दिल मोह लिए। सैयद सखी हसन शाह की रिपोर्ट है। फर्ज खिदमत आपकी तो आपने सुना है, मगर पुलिस ने कौस के रंगों को फूलों की नुमाइश में परोकर खूब दाद वसूल की। फारूकाबाद पुलिस सेंटर में पुलिस की तरफ से मैरीगोल्ड फूलों की नुमाइश सजाई गई। PC फारूकाबाद में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने फूलों की नुमाइश का इनकाद किया है। मुख्तलिफ जो स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको भी बुलाएंगे ताकि वो भी यहाँ पे आके इस माहौल को एंजॉय भी करें। पुलिस के वो गुडविल एम्बेसडर्स भी बनेंगे और वो देखेंगे कि पुलिस अच्छा काम कर रही है और साथ उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा डे स्पेंड करें। मैरीगोल्ड नुमाइश का मकसद माहौल की दिलकशी को परवान चढ़ाकर ये शऊर पैदा करना है कि मुआशरे में पुलिस का ये भी एक मुस्बत पहलू है। कैमरा टीम के हमरा सैयद सखी हसन, सच न्यूज, फारूकाबाद। मर्दान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डॉग शो सज गया, जिसमें शोख और शरारती कुत्तों के नाज नखरों ने सबको दीवाना कर दिया।
मर्दान में कुत्तों का खूबसूरत मेला सजा। आला नस्ल के कुत्तों ने धूम मचा दी। नटकर शरारतें हों या मालिक के साथ दौड़ धूप, कुत्तों की हर अदा दिल को भा गई। मेले में 100 से जायद जर्मन शेफर्ड लाए गए, जिसके दरमियान 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए। कुत्तों से प्यार करने वालों का कहना था कि उनके नाज उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। ब्रीड को हमारा यहाँ पे शो करने का मकसद है ब्रीड को प्रमोट करना। जर्मन शेफर्ड में बेसिकली 3 टाइप की जो ब्रीड्स हैं किस्म है वो आ रही हैं, जिसमें आता है लॉन्ग स्टॉक है, स्टॉक हेयर है, और फिर इसके अलावा लॉन्ग स्टॉक में जो है ब्लैक एंड टैन है और हमारे पास स्विच शेफर्ड आ जाते हैं। नुमाइश में जंजीर थामे मालकान के भी वखरे नखरे दिखाई दिए। हर किसी को यही मान था कि उसके पालतू कुत्ते जैसा किसी का हो तो सामने लाए। मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वालों को इनामात दिए गए। रीजनल स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक़िदा इस शो का मकसद पालतू जानवरों से प्यार और मोहब्बत पैदा करना था। मिट्टी से बर्तन और दीगर अशिया बनाने का सिलसिला सदियों पुराना है। देखिए मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट। जिला अटक की तहसील जंड में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से तैयार होने वाली अरैशी चीज़ों के कारीगर अपना आसानी नहीं रखते। इनके हाथों से बने मिट्टी के बर्तन और अरैशी चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है और लोग बहुत शौक से खरीदते हैं, लेकिन हालिया महंगाई की वजह से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर भी परेशान दिखाई देते हैं। इस दौर में हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर चीज़ महंगाई से है ना। मिट्टी भी लाते हैं और फिर उसे धूप पे सुखाते हैं, रंग करते हैं, भट्टी में पकाते हैं, फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है। हमारा हुकूमत से इल्तिजा है हमारे साथ ताउन फरमाए ताकि हम अपने बाप दादा का काम जारी रख सकें। कारीगरों का कहना है कि मिट्टी से बनी ये चीजें तैयार करने में हमारा वक्त ज्यादा खर्च होता है और मेहनत भी ज्यादा होती है, लेकिन मुआवजा बहुत कम मिलता है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।